तं येन चराचरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। We have noticed that we have to correct our identity. Everything is identity crisis. I used to sit with Swamiji, a remote place, especially during question answer sessions, and many of the, for any question, used to laugh and first say identity crisis. Friends, that time I did not realize or digest that much, though I understood intellectually. Understanding intellectually and digesting it in our daily life is a different issue altogether. You agree with? So आपको कोई भी प्रॉब्लम आया जीवन में ना, तो पहले देखना वेदर इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस. आपका सगा संबंधी बीमार है, वो सगा संबंधी क्यों है? आपके शरीर के माध्यम से. कौन है आपकी मावशी? माझ्या आईची बहीण आहे हो. आई कोण आहे? आम्हाला जन्म दिला ती कोण आहे? हा, मतलब माझं शरीराशी माय आइडेंटिफिकेशन इज विथ बॉडी. कुछ दिन पहले आपको पता नहीं थी, कुछ दिन बाद आपको फिर से पता नहीं रहने वाली. Friends, of late I started this and it benefited a lot. Identity crisis. कोणाचा लॉस झाला शेअर मध्ये, समजायचं आयडेंटिटी क्रायसिस. युअर इंटेलेक्ट डिड नॉट मॅच विथ द मार्केट or market was beyond your control. You are considering that your investments are your own investment. They are not. God has given you trust. You are a trustee. I have seen people dying because of share losses in shares. I have seen. एक तो सत्संग लेते थे, फिर किसी ने कहा उनके दो प्रेम थे, एक सत्संग और दूसरा शेयर्स. अरे यार, ऐसा नहीं हो सकता है. एक तो दो प्रेम नहीं हो सकते. नहीं, उनका शेयर्स में भी इक्वल प्रेम था, सत्संग में भी था. सत्संग ने बचाया रहता, शेयर ने डुबा दिया. Identity crisis. So friends, we have to correct our identity. Only today we'll give only 5 minutes background and then I will read the stanzas further. We have to move ahead little faster and I propose to finish it especially during those 3 extra classes, extra interactions. So get into the habit of negating everything, as I told you last time. So we reach point where we cannot negate further, and that is called negation. अपन थोड़ा देर बोलते हैं, फिर से मेरा,
मेरा, मेरा, and then we will settle into avikamp yoga. It is not knowledge, it is experience without doubt. So let us discover this truth for ourselves and also know that all problems are in our mind. Knowledge is a burden on intellect. I told you last time, I'm only repeating. A true knowledge, and the end of it will convert you into a loving person. You will be automatic loving without any calculation. Very difficult. And when you realize that that you are the reality, then nothing other is there for you other than the reality. क्या बात है? If you realize that, underline this word, realize that you are the reality, then there is nothing which remains for you to be seen as reality, as not as reality. Everything becomes reality. And if not, you are not real. I told you, जब तक आपको देखता है काळे मावशी काळे आहेत, गोरे ताई गोरे आहेत, लांडगे लांडग्यासारखे वागतायत, आदरणीय कोल्हे साहेब लबाड आहेत, वाघांचं विचारूच नका, तोपर्यंत it is difficult because you are living in the body as body. And the moment you do not do this, automatically you won't, a feeling will come, an embodiment of love. लोग मुझे, हमारे लिए हमारे स्वामी भगवान थे, भगवान है, थे मतलब फिर से मैं कॉर्पोरियल एग्जिस्टेंस के हिसाब से बोलता हूँ, ऑमनी प्रेजेंस के साथ बात नहीं हो सकती, या है। और लोग सवाल करते थे मुझे, क्रिटिक्स, घर वाले, रिश्तेदार, चाचा मामा, बॉडी स्तर पर, कह रहे यार वो फलाना आदमी भी वहां जाता है, ही इज नॉन क्रिमिनल, ही इज नॉन क्रूअल। अब मत आप मुझे बताओ कि आप अगर सिर्फ प्रेम है तो आपको दुनिया सिर्फ प्रेम भरी नजर आएगी ना। सिंपल चीज है, तुम्हारे हमारे दृष्टि में वो चोर है। अरे चोर मतलब क्या है? फाइनली उसकी कृति कुछ ऑब्जेक्शनेबल है। कोई रूह, कोई आत्मा चोर कैसे हो सकती है? कोई रूह चोर कैसे हो सकती है? लेकिन दृष्टि वो नहीं है। तो भगवान की दृष्टि में जो कि प्यार भरी है, सारी सृष्टि प्यार भरी है, अब उसी की सृष्टि है। हमारे नजर में जो क्रिमिनल है वो उसी की तो निर्मित है ना। भगवान राम को रावण कभी अलग नहीं दिखा, रावण का बर्ताव अलग दिखा। अंडरलाइन दिस, वी शुड नॉट टेक अदर्स एज अदर्स, वी कैन टेक देयर बिहेवियर एज अदरवाइज। क्या बात है? एट द मोमेंट वी नो दॅट, मला सांगा दात आणि ओठ किती लहानपणापासून आपण या गोष्टी ऐकल्या आहेत, हजारों लोगों ने, सबको पता है कि क्या जिह्वा आपके दांत को पनिशमेंट करती है? काटने के बाद नहीं करती है। आपला तो बाप्या, दुसऱ्याचा तो करंटा, नहीं करती है ना। इतना ही नहीं, दांत में कुछ फंसा तो बेचारे निकालते रहती है रे, जब तक आपको स्वस्थता नहीं मिले तब तक। डू वी थैंक अवर टंग फॉर दैट, और डू वी कंडेम अवर टीथ फॉर दैट? साला दाताने माझ्या जिभेला चोरला, त्याला डेंटिस्ट कडे जाऊन उपटून टाकतो म्हणून। आय डोंट थिंक आई हैव एवर मेट एनी पर्सन लाइक दैट। क्या समाज में विचरण करते हुए हर एक शख्स के साथ जो मेरी मुलाकात होती है, उस वक्त यही फीलिंग रहता है? नहीं ना। दांत अलग दिखते हैं, जिह्वा अलग दिखती है ना। दांत ने जिह्वा को काटा तो जिह्वा भी दांत को उखाड़ के फेंकती है ना। तब तक हम रियलिटी के कहीं भी नजदीक नहीं है। फ्रेंड्स, spirituality is an expression of your reality.
expressing outside as reality. The moment there is difference in non-concordance of the thought, word, and the deed, to that extent we are diversified from our reality, and to that extent we are demoniacal. To that extent we are incurring sin. I told you, our sin is our identification with BMI. Our sin is our non-identification of the reality what we are. Our sin is not that I spoke truth, untruth. Our sin is not that बचपन में 10 रुपए चोरी करके लिबर्टी में सिनेमा हॉल में पिक्चर देखी. Our liberty is not that I met somebody of either origin and did not tell because of the fear of somebody. I copied in the examination and I did not tell my parents, these are not the sins. In all these processes and throughout till this date in my life, I am still identifying myself wrongly with my BMI, and that is the sin. So if you want to see the divinity in the world, then start this philosophy. With these friends, I request I to get us through stanza 14 and stanza 15 for our comprehension. जी सर, जी सर. सर्वम् एतत्कृतं मन्ये यत् मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदु देवान दानवः. हे केशवा, जे काही मला आपण सांगत आहात ते सर्व मी सत्य मानतो. हे भगवन, आपल्या लीलामय स्वरूपाला ना दानव जाणत ना देव. हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ. हे भगवन, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही. स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते. हे भूतांना उत्पन्न करणारे, हे भूतांचे ईश्वर, हे देवांचे देव, हे जगाचे स्वामी, हे पुरुषोत्तमा, तुम्ही स्वतःच आपण आपल्याला जाणत आहात. हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से सर्वमेतत् तम मन्ये यन्मां वदसि केशव. केशव का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ सॉर्रो. केशव एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ सॉर्रो ऐसा ही नहीं, ऑफ दोज हु हैव सरेंडर्ड टू हिम. जिन्होंने ईश्वर की शरणागति ली है, ऐसे लोगों का दुख दूर करना, इसका मतलब केशव. अब यहां केशव शब्द इसलिए यूज हुआ है कि अर्जुन खुद को एक्सपोज कर रहा है, एक्सप्रेस भी कर रहा है और एक्सपोज भी कर रहा है. और वो श्रद्धा दिखा रहा है अपने टीचर के प्रति कि आप जो भी कुछ बोल रहे हो ये सब सत्य है, मैं जानता हूं. सर्वमेतत् धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, ओ डिस्ट्रॉयर ऑफ सॉरोज. समझ में आई बात? लेकिन इस सत्य को सब आजमाने के लिए मैं असमर्थ हो रहा हूं. He admits
कई मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं, अतुल तू जो कहता है समझता है यार, पर ये उम्र में ये लाइफ में शायद हमारी ये बात नहीं है, वी कैनॉट. No, they must be having their vasana incrustation, they must be knowing their limitations. मैंने कभी पूछा नहीं उनको कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैंने उस दृष्टि से किसी को देखना खत्म करो यार, तू अच्छा मैं अच्छा. लोगों को प्रेशर आता है. मैंने आपको पहले भी कहा था, आप अगर बारंबार ऐसी चीजें घर में करते देखो, इधर कोई रिश्तेदार आपकी तरफ वॉच कर रहा है, वॉच रख रहा है, तो धीरे धीरे वो आपको जो पसंद का है वही बात करेगा, भले ही नाटक करेगा. Suppose I visit your house and if I see you are reading Vivek Chudamani, मैं वैसी बातें करने लगूंगा, भले कुछ पढ़ा नहीं होगा. अरे यार, लॉन्ग बैक आई हर्ड लेक्चर ऑफ स्वामी आत्मानंद फ्रॉम रामकृष्ण मिशन ऑन विवेक चूड़ामणि. आपको भी अच्छा लगा, आपको पता है वो भी कोई सवाल नहीं पूछने वाला है, और पूछा तो देखा जाएगा. अब ये प्रोसेस को थोड़ा समझिए. उस दिन मैंने बताया था, आज हम इस प्रोसेस को समझिए कि एग्जैक्ट क्या है. पहले तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. जैसे आपके अंतस विचार के तरंग किसी एक विषय में जाते, आप एक करके देखना दोस्तों. आप एक महीना ये मन में लाइए कि मुझे ये अमिताभ की मूवी देखनी है. आपको कुछ ही दिन में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या बोलेगा यार ये मूवी देखना है क्या, मैंने डाउनलोड की है. आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने क्या अट्रैक्ट करके रखा है. अभी ऐसी चीजों में मत आजमाइए. अभी ये आजमाइए कि भाई मनुष्याणाम या दुर्लभम मानुषम जो परसों ताई ने भेजा था, और देखो कैसे तरंग आ गए. मैं मनी मन विवेक चूड़ामणि का बहुत दिनों से सोच रहा था. हमारे कोई मित्र यहाँ है, उनसे हम बात भी कर रहे थे पहले. मैं सोचा चलो थोड़ा सा पहले गीता उपनिषद हो जाए, क्योंकि सही में वो एडवांस ग्रंथ है. शास्त्रकार मानते हैं, मेरा कहना नहीं है. और जब शास्त्रकारों का यह कहना है, शास्त्र ज्ञातों का यह कहना है, तो जरूर उसमें कोई ऐसी चीजें होगी जिसमें हमारे लिए विचार के लिए हम प्रतिबद्ध हो जाएंगे, विल बी कमिटेड. तो उस वक्त वही होता है जो उस वक्त उसकी जरूरत होती है, कलेक्टिव. अब उनको क्या जरूरत थी, ना हमने कोई डिसाइड किया, आपस में कभी संभाषण किया, उनको पूछ के देखिए, कभी नहीं कैसा ऐसा करेंगे. और ये भगवान के प्लान ऐसे हो ही नहीं सकते. आप करके देखो, दोनों जन बात करके. कल से रामचरितमानस मैं 3 साल से सोच रहा हूं, भगवान राम मुझे क्षमा करे कि मैं रामचरितमानस पे बहुत गहराई पे अध्ययन करूं. प्रवचन की बात नहीं कर रहा हूं, अध्ययन करूं. मेरा अध्ययन अभी नहीं हुआ है इतना अच्छा. वो स्टोरी लेवल पे ठीक है, या कॉन्सेप्ट में भी ठीक है, आत्मा रामायण वगैरह कि सुग्रीव का मतलब क्या, वाली का मतलब, वो ठीक है, वो हमारे बाल विकास में भी है. लेकिन जब तक तह में नहीं जाते, गहराई में नहीं जाते, इसलिए मैंने कभी नहीं बोला कि तुलसी रामायण पे हम लोग कुछ चर्चा करेंगे करके. भगवान राम क्यों रोए, इसका बहुत अध्ययन होना जरूरी है. भले ही सब आंसर्स पता है, वाली ने चिपके बाण क्यों मारा, इसका बहुत अध्ययन जरूरी है. आंसर्स पता है, रटे रटे रटाए आंसर हमें नहीं चाहिए. आजकल आप गूगल में डाल के देखिए, वाली ने चिपके पीछे से आंसर बाण क्यों मारा, आपको तुरंत 10 आंसर्स मिल जाएंगे quora.com. ऐसा नहीं होगा भाई. ऋषियों की इज्जत है, 5-5 मिनट में ऐसे आंसर मिलने लगेंगे तो, जिनको सालों तपश्चर्या करके तकलीफ हो रही थी. इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड. And Arjuna is exposing himself over here and expressing himself further up that, even though I have accepted the truth, I know it is unable to, I am unable to comprehend it. समझ में आ रही बात.
अच्छा, दूसरा है शब्द यूज किया है देव और दानव। अब तुरंत 4 दांत वाले, 4 सींग वाले दानव और बहुत सुंदर दिखने वाले देव, ये मत याद करो। नोबलर क्वालिटीज इन अस मीन्स देव, एंड बैड क्वालिटीज नहीं बोलूंगा मैं। क्वालिटीज ऑलवेज टू कॉन्कर, टू फाइट, टू एजिटेट, टू रेजिस्ट, इज कॉल्ड दानव। धनु के पुत्र थे ये दोनों। भगवान को जानने को असमर्थ हो जाते हैं। आगे स्टैंजा आने वाला है। आख्या हिमे को भवानुग्र रूपा नमोस्तुते देव वर प्रसीदा विज्ञातुम इच्छामि भवंत माध्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। आगे आएगा, अर्जुन भी बोलता है कि जितना आपके अपार्थिव व्यक्तित्व को मैं जानने की कोशिश करता हूं भगवान, मेरे मित्र कृष्ण, उतना ही मैं आपको जानने में असमर्थ हो जाता हूं। How much ever I try to understand your immortal personality, to that extent I remain unsuccessful in my attempt to know that. अब आपको याद होगा मैंने बहुत बार कहा है, इट इज नॉट सफिशियंट फॉर टू बी गुड। आम्ही चांगले आहे किंवा कुठली व्यक्ती चांगली आहे हे सफिशियंट नाही आहे, याचं उत्तर आपल्याला स्टैंजा नंबर 14 में मिल रहा है। देखो व्यक्तिगत ट्रांसलेशन ताई ने किया कितना अलग है। कभी भी भगवत गीता का ट्रांसलेशन सिर्फ 1 मिनट के लिए ही होना चाहिए, ताकि उसको आप सेंटर पॉइंट बना दे और उसके बाद आपका चिंतन करिए। बंद कर दीजिए और आपके परमात्मा के चरणों में बैठ जाइए। और बोलिए मुझे इसका उत्तर बताओ। मैंने साइंस के प्रश्न और भगवान ने मुझे मदद की है। दोस्तों बीटेक में हमारा बहुत रैगिंग हुआ था और किसी ने पढ़ाई नहीं की थी, और हम सिर्फ 2 बच्चे पास हो गए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे सारे सब्जेक्ट में 35 और 40 में से थे, 100 में से। उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि मैं परमात्मा के चरणों में बैठा और उनको बोला इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, चाहे वो अप्लाइड मैकेनिक्स का हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स का हो, जो भी हो। उसके बाद बहुत सालों बाद कार्पण्य दोषो जब पढ़ाई में आ गया, पढ़ने में आ गया, तब समझ में आया कि उसके चरणों में ही आंसर मिलता है। आपके ऊपर कृपा है, आपके कर्मों का अच्छा संग्रह आपके पास में है, तो आपको कोई माध्यम से, किसी व्यक्ति से कभी कभी आंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये, आज भी मैं बच्चों को कहता हूं कि यार ज्यादा है क्लासेस बिजनेस, भले ही मेरा बिजनेस है वो, इस पे ज्यादा ध्यान न देते हुए आप ईश्वर, अभी कहा ईश्वर वगैरह लोग पहले पांठेले पे दौड़ते हैं, ईश्वर वगैरह की दूर दूर की बात है। टेल मी, आपने तिलक जी, महात्मा जी, सावरकर जी, इनके सब कहानियां पढ़ी है? स्ट्रीट लाइट के अंदर जब तक एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था, लोकमान्य जी उठते नहीं थे। अब ये स्टोरी के लिए अच्छा लगता आपने को, क्या हमने किया है? सर वो मत पूछो, वी ओनली टेक एग्जाम्पल्स ऑफ अदर्स। हम पकौड़ा खाते खाते कहां समय है हमको। तभी गीता रहस्य पैदा हुआ ना। उनको पहले रहस्य पता था खुद के लिए, तब वो बाहर प्रकट हुआ गीता रहस्य। और मैंने अनुभव में लिया जीवन में दोस्तों। उस वक्त तो चमत्कार लगा भगवान का, उम्र छोटी रहती है, आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अब तो मुझे लगता है किसी भी चीज का, अभी जिस क्राइसिस से मैं गुजरता हूं, वो भगवान के चरणों में बैठ के बोलता हूं, अरे अव्यक्ता निधनान्य वो तत्र का परिदेवना अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। इसका मतलब सिर्फ आदमी के लिए नहीं, कोई घटना भी एक विशिष्ट रूप में, हमारा गीता अध्ययन भी एक प्रकट हुआ है और कुछ दिन बाद वो अप्रकट हो जाएगा। संसार का नियम है, इसमें सुख दुख की बात नहीं है। हम कहते रहेंगे अरे यार लोग मुझे मिलते हैं सर वो दिन अच्छे थे। हमारे सुंबर साहब जानते हैं, बहुत छोटे थे हम, हमारे घर में ईश्वर की कृपा से बहुत बड़ा सत्संग अव्याहत चला, और वो इन्हीं का भी उसमें योगदान था कि जिन्होंने हमें पूरा इंचार्ज वहां का बना दिया था आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए।
जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम प्रतिबद्ध थे, आज भी है। अभी लोग मिलते हैं, सर क्या दिन थे वो, अभी नहीं आए, यू वर ए ड्रिल मास्टर। आई सेड आई वाज नाइदर ए ड्रिल मास्टर नॉर ए मास्टर आदि, लेकिन वो क्या दिन थे। अरे वो क्या दिन थे तो आज क्या है, फिर दुख में है कौन? हाँ, यही तकलीफ होती है। वो क्या दिन थे का मतलब अभी प्रॉब्लम है, वो क्या दिन थे और आज भी क्या दिन है। ये हुआ ही सिद्धांत। दोस्तों, इट इज जस्ट नॉट सफिशिएंट फॉर टू बी गुड, ट्रस्ट मी। इट कैन ओनली गिव यू ए बेटर बैलेंस। लेकिन फिर से क्षीणे पुण्य मरते लोके विशंति। द ओनली एम ऑफ लाइफ is to be divine, to have that self unfoldment, to get rid of non-essential self. Yes, indeed. Are we ready? इंग्लिश गाना भी ऐसा है, गूगल में मार के देखो, Are we ready? Sir, we are not. डराओ मत, अभी टाइम है। Let me have my sensual enjoyments first. Let me go through the genesis of this material world. I will transcend it later on. If you are planning transcendence, it can never happen. All planning is in the external world. The only planning is your sankalpa and place it at the altar. भगवान के चरणों में वहां उसको रख दो। कई लोग कार खरीदते हैं, मैंने देखा है, कार की चाबी भगवान के चरणों में रखते हैं। उनको पता है कि भगवान एक चाबी उठा के लेके नहीं जाने वाले। एक दिन ऐसे हमारे मित्र ने नई गाड़ी ली, भगवान के सामने रखे, बोले उनकी गाड़ी है। मैंने चाबी उठा के जेब में रख दी। थोड़ी देर तो उन्होंने बाहर से दिखाया, अरे कुछ नहीं हुआ करके। हो सकता है डुप्लीकेट चाबी उनके पास हो, क्योंकि चाबी मेरे पास है इसका मतलब कार तो मेरी नहीं हो सकती। मैंने कहा इट इज गुड फॉर एक्सटर्नलाइजेशन। फिर कई दिन बाद ऐसा मौका आया कि हम उस शहर में गए, नागपुर की बात कर रहा हूँ। उनको बोला 2-3 दिन नागपुर आ रहा हूँ, पेट्रोल मैं भरूंगा, आप गाड़ी चलाने दे सकते हो क्या? जबकि मुझे पता था गाड़ी पड़ी हुई है। देखो दोस्तों, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूं जो वास्तविकता के है और जिसे कहां से, और मुझे पता था ये, मैं भगवान की दया से 40 फ्रेंड 100 फ्रेंड्स है वहां, लेकिन मैंने उसी को गाड़ी मांगी। और कोई लेसन नहीं देना था। हम कौन होते हैं किसी को लेसन देने वाले? अपने आप किसी को रियलाइजेशन हुआ था और गाड़ी पड़ी हुई थी, लेकिन गाड़ी चलाने को देने की इच्छा नहीं हुई, जबकि हम ईश्वर की कृपा से अच्छे ड्राइवर है। 15-20 सालों से 25-30 सालों से गाड़ी चला रहे तो ऐसा भी नहीं कि भाई नवीन माणूस है गाड़ी चालवतोय गाड़ी खराब होईल। उनको हमने मजाक में कहा बाद में, दोस्त बुरा नहीं मानना, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, और मेरे मन में कोई भी एक इत्तू सा भी आपके बारे में ये नहीं है। लेकिन याद है कुछ सालों पहले अपने चाबी भगवान के चरणों में रखी थी। अगर आज आप यही मानते कि भगवान ने ही किसी मेरे मित्र को 2-3 दिन से गाड़ी चलाने के लिए बोला, जबकि गाड़ी का दूसरा काम नहीं है, गाड़ी गैराज में पड़ी हुई है, पेट्रोल भी आपको नहीं देना है, भाईजान भर रहे हैं पेट्रोल, नहीं ना। इसलिए when we externalize anything, be prepared for internalization. जिम्मेदारी बनती है, लोग परीक्षा लेते हैं। ये घर तुम्हारा ही है, कभी किसी को मत बोलो। मेरे जैसा आपको घर में आ गया तो अंदर आप रसोई घर में खुसफुस करोगे, खरंच आले बापरे राहायला, बाहेरून या संत आले असं वाटतंय जेवायला, वा अतुल सोमन खुश। स्वयंपाकघरात हळूच। Do externalization when your internalization is perfect.
It is not the reverse process, friends, where I am trying to bring that point under your belt. We feel that the journey is from, no. मला सांगा, कलकत्त्याहून जाते गंगोत्रीला गंगा का गंगोत्रीहून जाते कलकत्त्याला गंगा? It is source first, flow later, and merging in the ocean last. It's not merged first, came out of it, had a flow via Media, Kanpur, and other cities, Uttarkashi and others, and finally merged in Gangotri. It cannot. It will not. So when the internalization is perfect and to the point and in place, first of all, we will not need any externalization. And if at all we need it, it's only a joyful expression and manifestation of your inner world. That's all. एकदा मी म्हटलं ही गाडी तुमची आहे आणि आप में से कोई भी आया मेरे घर, साहब जरा गाड़ी चलाने देते हो क्या 4 दिन? ये चाबी लो, पेट्रोल भी भरा हुआ है जहां तक हो सके, क्या बात है, चलाओ, घूमो. Brotherhood of man and fatherhood of God. Friends, the point to be drawn is, it's just not enough to be good. It is necessarily we need to be divine. And we are. So it's necessary for us to remove the undivine, to de-identify with the undivine. I don't think we have any doubt on this. That is Deva and Danava. Now when he says, Devo ko bhi nahi jan, see, neither God, as I told you, Deva stand for nobler and the higher comprehensions in us. आपल्यातले काही सद्गुण, त्याला आपण देव म्हणूया. And Danava stand for the hosts of negative charges in us. Negative qualities in us. Attributes, I'm sorry. Quality cannot be negative. Attribute can be negative. English also has a beautiful, subtle, as I told you. Quality is quality. We can't say negative quality. बहुत लोग बोलते हैं उसमें negative qualities है. अरे क्या negative qualities है? Quality is a positive word. उसमें negative attribute है. So, summum bonum is of this entire expression that neither the good in us can embrace the truth, nor the bad in us can challenge the truth. क्या बात है? Let us comprehend on it. Neither, I repeat, the good in us can comprehend the truth, nor the bad in us can challenge the truth. Then what it is? It is beyond that. What does it mean? Let us see what does it mean. अरे सर हमको तो लगा ये देवदानों की बात चल रही है और अरे नहीं 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 नहीं. Now friends, it is an indication that whether good or bad, it is still an identification. Whether good or bad, it is still an identification. And all identifications are sins. Yes, to begin with, to replace your vices, virtues are essential. But our virtues only can never take us to realize the truth. Arey wah.
गंगोत्री हे नाही म्हणणार की या शहरात उत्तरकाशीला गंगा शुद्ध होती, कानपूरला मळलेली होती. मळलेली होती म्हणजे दानव आणि शुद्ध होती म्हणजे देव. गंगोत्री म्हणेल मी सोर्स आहे आणि माझी जी प्रिस्टीन प्युरिटी होती, नुसतं शुद्ध हे नव्हते, शुद्ध पण होते, नुसतं स्वच्छ नव्हती. हा, इट्स अ गुड एक्झाम्पल. गॉड गेव मी द गुडनेस इज लाईक स्वच्छता, क्लीनलीनेस, दॅट्स ऑल. Actually, cleanliness is next to godliness. This is original phrase. Not cleanliness is godliness. लोकांनी कन्वर्ट केलाय त्याला. Cleanliness is next to godliness. Exactly. So virtues are closer to be divine, but it is still not divine. Oh. Sir, do you mean that we have to transcend our perceptions? Exactly. Because good, सात्विक बेडी आपण माहिती आहे ना आपल्याला, बेडी लोखंडाची असो की सोन्याची, ती बेडी आहे, वैसा बोलना है. म्हणून कधी सूक्ष्म लक्षात ठेवा, आम्ही सत्संग असतो आमचा, सोमन सरांचा, अरे भूल जाओ, वो सोने की बेड़ी हो सकती है, आखिर वो बेड़ी है. What I stand for and what I am is the highest reality beyond all perceptions. Body perceives objects, mind perceives feelings, intellect perceives, I told you, thoughts. Yet all the three are identifications. Otherwise, every Buddha would have said, be a person with good thoughts. Why should they say be thoughtless? Did we ever think of this? Whether there is meditation, where is, nobody has said be only entertain good thoughts. They said be thoughtless. Yes, it is a purified version of this stanza. You have to go beyond Danavs and Devas. And hence, friends, Vidur Devana Danava is neither the good qualities in us nor the bad in us going to either help us to realize divinity or to challenge the divinity as such. तो यहां ये क्लियर हो रहा है कि हमें हमारे सारे परसेप्शंस को ट्रांसेंड करना पडेगा, हमारे सारे परसेप्शन्स के ऊपर जाना पडेगा. आता एक कळलं, आपल्याला बरेचदा असं वाटायचं मी छान काम केलं, झोप चांगली लागेल, त्याच्या पलीकडे काही होणार नाही. किती एकते जन्मले आणि मेले. म्हणून मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, क्यों बोला ऐसा? कश्चिन माम व्यक्ती तत्वतः, शेवटी म्हटलं. सिद्ध असले तरी यततामापि सिद्धानाम काही फायदा नहीं है, क्योंकि कश्चिन माम व्यक्ति तत्वतः जानना भगवान को, यही उसका बुद्धि योग है. हमने देखा है अभी बुद्धि योग के बारे में. In the second part which I read, we have seen that Swayamevatmam Atmanam Vettatvam Purushottama Bhuta Bhavana Bhutesha Deva Deva Jagatpati. Arjuna only says that you yourself know yourself by yourself. It is like Uddare Atman Atman. और पुरुषोत्तम इस शब्द पे अपन बहुत बात करेंगे बाद में.
आज नहीं. As usual, last 10-15 minutes we are only talking, introducing this stanza. And then he says, source of all beings, Lord of all beings, God of gods, ruler of the world. 4 शब्द है देखो. सोर्स ऑफ ऑल बीइंग्स. कभी कभी हम सोर्स रहते हैं किसी को इंस्पायर करने में, लेकिन हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे हाथ से निकल जाते हैं. वो अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं, इवन प्रेम के हिसाब से. इसका मतलब क्या हुआ? आई वॉज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द पर्सन. जैसे मैं बच्चों को सिखाता हूं, मेनी आर इंस्पायर्ड, फ्यू कीप कॉन्टैक्ट, मेनी इवन फॉरगेट टू रिकॉग्नाइज. गीता गिव्स अस द विजडम नॉट टू वरी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन किसी को है ही नहीं. मतलब क्या हुआ? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल, yet you are not the Lord of all, yet you are not the God of all, yet you are not the ruler of all. होता है कि नहीं? गुरु पूर्णिमा को कुछ लोग झुककर नमस्कार करते हैं. एक ही लिनियज की बात कर रहा हूं, दूसरे रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं. उनके यहाँ झुकना अलाउड ही नहीं. अब्दुल्ला का सिर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, किसी इंसान के सामने. ठीक है, मंजूर है. अब इसको संस्कारों सिर्फ बोल के छिपना नहीं होता है. हमारे एक टीचर है, एक बार बोल रहे थे, सर मैंने उनके घर में जाके उनको विश किया बोर्ड की एग्जाम के लिए. द स्टूडेंट ओनली स्माइल्ड, ही डिड नॉट से वन थैंक यू. सर आपकी 2 गलतियां हो रहा है बोला. बड़े बुजुर्ग मित्र है मेरे. पहले बात, आप घर के, मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर देने पड़ेंगे. आप घर क्यों गए? बोले वो शी वॉज माई गुड स्टूडेंट, आई थॉट आई शुड विश यू. फाइन बोला. आप गए, आपने आपका काम किया. व्हाई डिड यू, वो फीलिंग आप क्यों लेके गए कि आपने अच्छा बोलने के बाद में झुक के नमस्कार करेगी, बोलेगी सर आपने मेरा बहुत साल भर कल्याण किया, भगवान के बाद आप ही हो. दिस इज आवर ईगो. रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन. आपको आनंद आया, इसका मतलब आपको घर जाके आनंद नहीं आया ब्लेसिंग्स देने के लिए. ब्लेसिंग्स का रिप्लाई देखने के लिए आपका सीडो ईगो, आप लालायित था. बड़े विचारवंत प्राणी है, फिजिक्स के टीचर है. फिजिक्स स्पिरिचुअलिटी से बहुत क्लोज है. हर जगह हमारी गलती होती है. So the person was good, but his goodness was marred with expectations. मेरे साथ केस हुई है. किसी के घर में गया, उसकी मदर इन्फॉर्म करनी है भाई टीचर आए हैं आपके, और बच्चा तब तक नहीं आता है जब तक टीचर घर में है. हमने ट्यूशन छोड़ी नहीं. अब आप ये बोल सकते हैं कि सर पैसे की जरूरत थी, वो बात अलग है. अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, ये जब तक हमारे जीवन में नहीं उतरता है हमारे लिए तकलीफ है. बातें वही आके घुमा फिरा कह रहे हैं, नेकी करो और दरिया में डाल. पहले तो नेकी नहीं करते अपन, सब मेरा मेरा, मेरे लिए मेरा, ये मेरा, वो मेरा. तो और फिर किए भी तो इतना एक्सपेक्टेशन लेके बैठते हैं, अरे छोड़ यार. और इतना ही ख्वाब है तो मनी मन इमेजिन कर, हजारों लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दे रहे हैं. आपको भगवान ने लोगों को आशीर्वाद देने के लिए भेजा है. आई नेवर से बेस्ट ऑफ लक टू माई स्टूडेंट्स. हाँ, यस, बकवास. What is best? What is luck? And why should I say best of luck?
वी शुड से बेस्ट ऑफ एफर्ट्स। अपनी डिक्शनरी के जीवन की जो डिक्शनरी वो बदलनी पड़ेगी अपने को। व्हाट इज हैप्पी बर्थडे? पहले तो जन्म में आया तो अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्ववा। दोस्तों, रिवोल्यूशन अंदर होगा तो बाहर अपने आप होगा। उसके कारण आप समाज से अलग दिख सकते हैं, उसकी भी फिक्र नहीं करना। व्हाट इज बेस्ट ऑफ लक, यू टेल मी। कभी हमने सोचा है कि छोटे छोटे शब्द जो हम यूज करते हैं, ये अभी बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत लोगों की प्रथा है, जिनके जिनके ये सब बच्चे 10th-12th में, उनको जाके घर वालों को, इधर वालों को, वहां से यहां से, अरे सर वो गुडविल का जेस्चर है ना, आप क्यों अपोज कर रहे हैं? अपोज नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर उन्होंने आपको नमस्कार नहीं किया तो तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ, टू बी गुड इज नॉट सफिशिएंट, आई एम गिविंग यू द प्रूफ। यू आर गुड, your intentions were good, but your intentions were marred by the expectations surrounding. मैंने उनको खत लिखा, पहले जमाने में याद है मुझे, उन्होंने शायद जवाब भी नहीं दिया। आपने खत जवाब देने के लिए लिखा था कि आपकी भावना पहुंचाने के लिए लिखा था? The response of the world is not in your hands, but response to the world is in your hands. दोस्तों, छोटी छोटी जीवन के पहलू है जिसके कारण हमारी भगवत गीता और ये हमारा सत्संग एक उत्थान पर है ईश्वर की कृपा से, क्योंकि यही चीज है, ये छोटे से 2 लाइन में समझती नहीं है जिसमें गर्भार्थ छिपा हुआ है। ये मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि देव दानव से कैसे ऊपर उठना है। हम दानव बन जाते हैं अपेक्षाओं की घेरों में। निरपेक्ष है तो आशीर्वाद दो, अपेक्षा है तो कोई आशीर्वाद दे दो, आपके बेस्ट ऑफ लक से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बहुत पहले किसी को घर जाके बेस्ट ऑफ लक दिया था और वो व्यक्ति बीमार पड़ी। तब से मैंने आज तक किसी को, चाहे ये प्रोफेशन में हूं नहीं, किसी को बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला है। मन ही मन उस व्यक्ति के लिए परमात्मा की तरफ प्रार्थना की है। यह उस व्यक्ति के लिए क्यों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इन क्लचों से जब हम बाहर आएंगे दोस्तों, बहुत सारा हमारा समय भी बचेगा। हो सकता है उनको लगे अतुल सर के बेस्ट ऑफ लक नहीं आए, अभंगिताई का बेस्ट ऑफ लक नहीं आया, शीतल जी ने हमें विश नहीं किया। हो सकता है लोगों को लग सकता है, लेकिन उनको पता नहीं यही वो दिव्य विभूतियां है जो आपके लिए परमात्मा की तरफ उसी वक्त प्रार्थना कर रही थी। मित्रों, जीवन की ये परिभाषाओं को हमें समझना पड़ेगा। और मैंने कहा, जीवन की सारी परिभाषाओं ये समझकर जब समाप्त हो जाती है, वह अध्यात्म की शुरुआत होती है। जीवन की सारी परिसीमाएं खत्म होती है, परिकल्पनाएं समाप्त होती है, वहां अध्यात्म की शुरुआत होती है। लेकिन हमारी दुनिया इन परिकल्पनाओं में, इन परिभाषाओं में इस तरह से जकड़ गई है, सीमित हो गई है कि हम ज्यादा से ज्यादा बैड से गुड हो सकते हैं, लेकिन गुड से डिवाइन होने का जो सफर है वहां तकलीफ होती है। इसलिए भगवान को, या अर्जुन खुद बोल रहा है कि ये नहीं समझ पा रहे। अर्जुन अभी जिस तरह की बातें करेगा भगवान की प्रेरणा से ही बातें करेगा। 10 अध्याय हो चुके हैं, आप भूल रहे हैं, 9 अध्याय हो चुके हैं, परिपक्व है, लेकिन वही बोल रहा है कि मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं कि आप सत्य हो,
कई लोग मुझे कहते हैं छोटी छोटी चीजों में, सर हम जानते हैं, लेकिन सिलेंडर खत्म होने के बाद में 100 रुपए देके सिलेंडर लेने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है, वी आर द विक्टिम्स ऑफ द सिस्टम बोल के चुप हो जाते हैं। मैं कहता हूं आपको सलाम और आपके करतूतों को सलाम, बस आनंद से बोलो। ऐसा कोई शख्स नहीं है मैंने देखा कि जो पासपोर्ट ऑफिसर को पैसा नहीं खिला के जल्दी पासपोर्ट नहीं बनाता है, या आरटीओ से अपना छिपा हुआ लाइसेंस या जकड़ा हुआ लाइसेंस जल्दी करने के लिए पैसे नहीं देता है, और वो बोलता है इट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। सोमन, यू आर नॉट प्रैक्टिकल पर्सन। यस, वी आर नॉट। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? वी आर नॉट, एंड वी आर नॉट रेडी टू बी। नुकसान आपको ही होता है ना, अग्री। तकलीफ आपको ही होती है ना, अग्री। लेकिन एक सामान्य प्रयास है, किसी को बताने के लिए नहीं, अपने आप के लिए, उद्धरे आत्मनात्मों के लिए, कि भाई टू बी गुड इज नॉट सफिशिएंट, लेट अस ट्राई टू बी डिवाइन। ये एक सामान्य प्रयास है अपने आप के लिए, अपने आप के द्वारा, अपने आप से बचने के लिए। पहले आप सत्य का हाथ पकड़े हुए हैं, और तीसरा आप जो है जिससे आप बचना चाहते हो वो आप धोखा दे रहा है। So Arjuna says, verily you yourself know yourself by yourself, O Purushottama, Supreme Purusha, O source of all beings, O Lord of all beings, O God of all gods, ruler of the world. Oh, what an address! He knows he's the source. He knows he's the Lord. He knows he's the God of all gods. He knows that he's the ruler of that. In spite of that, friends, he confesses that I'm unable to. Oh. मला कळतंय सर काय गणित शिकवताय तुम्ही, पण तरी मला गणित कळत नाहीये. आहे की नाही जीवनाचा विरोधाभास? We understand, we appreciate, but yet we are unable to digest for ourselves, and this is exactly vasana in castration, friends. जन्म घेणे लागणे वासने संगे. Sri Krishna, friends, it's indeed a tough task for all of us. It's indeed a very, very tough task for us. Trust me. But here we have to trust our Lord. Here we have to trust His words. Here we have to understand these 18 yogas, starting from Vishada Yoga and culminating into Prasada Yoga. Then we get a question before I end today's interaction. That what is it which creates a balloon out of our hallucinatory existence? Which creates a dogma out of no theory? Which creates an institute in no man's land? And that is precisely my de-identification with wrong attachments with my BMI, and that is all. Neither the good nor the bad can realize it, neither the noble nor the ignoble can realize it. You yourself, for yourself, by yourself, within yourself, as you are only the source and Lord and God and ruler of the world, and indirectly you means not Lord Krishna now, you means self. Arjuna means non-self. Is non-self addressing the self and confessing and lovingly goading the self that you alone exist? The moment we do this, our non-self will slowly get merged in our essential self. That is the meaning of Arjuna getting merged in Lord Krishna. That is the meaning of non-essential self getting merged in the essential self. That is the meaning of transcending body, mind, and intellect. That is the meaning of transferring and transcending ourselves from the material world to the spiritual world. कठिन साधना है दोस्तों,
मैं इसको कभी सिंपल साधना नहीं बनूंगा, क्योंकि जैसे ही ये लेक्चर इंटरेक्शन खत्म हो जाती है, आप और मैं दोनों, अंडरलाइन दिस वर्ड, आप और मैं दोनों उसी व्यावहारिक जगत में फंस जाते हैं जहां शरीर, मन और बुद्धि के संबंध और संग्रह, वेट एंड ड्राई कचरा, हम फिर से इन्वॉल्व हो जाते हैं, टोटली फॉरगेटिंग एंड अगेन गेटिंग एनग्रॉस्ड इन आवर आइडेंटिफिकेशन। तो परमात्मा की कृपा के बगैर ये असंभव है, इसलिए उन्हीं की कृपा का इंतजार करते हुए, एडिशनल कृपा का, कृपा है इसलिए ये पढ़ रहे, कृपा है इसलिए सत्संग हो रहा है। जब चाहो, जिस वक्त चाहो, आप लोग अपने काम छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, हर वक्त आप मुझे रुला देते हो, गदगद कराते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। आप नहीं तो मैं हवा में बात करूंगा। आपका उतना ही योगदान है इन विचारों के प्रति हमारा समर्पण करने, जितना हमारा है, जितना हम दोनों का है, जितना परमात्मा की कृपा का है। और इसी कृपा दृष्टि में, और नारद जी और हनुमान जी के बहुत बहुत विशेष कृपा के द्वारा इस भक्ति योग का हमारी यात्रा जो है आगे बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा एक सॉलिड बैकग्राउंड तैयार हुआ है। जब विभूति का दर्शन होगा तब हम जरा फास्ट जाएंगे। मेरा प्रपोजल है कि 18 तारीख तक या 17 तारीख तक, जो भी जैसे संभव हो, हम अविकल्प योग का पूरा दर्शन कराएंगे भगवान हमें, ताकि फिर 11वां और फिर 12वां अध्ययन, और उसके बाद गुरु पूर्णिमा में हमारा दिव्य संकल्प हम सभी ने समष्टि रूप से भगवान के चरणों में रखा है कि हम विवेक चूड़ामणि, इस अद्वितीय ग्रंथ का उदाहरणों द्वारा, मैं थोड़ी मेहनत भी करूंगा। अभी आपसे क्षमा प्रार्थी हो, कोई वाचन, कोई विशेष अध्ययन नहीं हो रहा है। कुछ मित्र मेरी परिस्थिति जानते हैं, क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि हर इसके लिए स्टोरीज है, बहुत सारी चीजें है, लेकिन अध्ययन नहीं हो पा रहा है। लेकिन भगवान की कृपा से कुछ वार्तालाप जरूर हो रही है। इसमें आपका आशीर्वाद मेरे साथ में है। मैं एक बड़ा सन्नाटा भरा लेकिन बड़ा आनंददायी इसमें एक विश्राम लेता हूँ, और शनिचर को 99% हमारी और एक इंटरेक्शन हो जाएगी, ताकि मैंने जैसे कहा, मैंने एक एम रखा है कि कम से कम 2 हमारे संवाद हर हफ्ते में होने चाहिए। तो एक संवाद हो गया, वो पिछले हफ्ते में एक ही हुआ था इसलिए हुआ, और इस हफ्ते में मैं भरपूर कोशिश करूंगा, ये संकल्प भगवान के चरणों में रख रहा हूँ कि सैटरडे में हमारी इंटरेक्शन हो, अगले वीक में 2 बार हो, और फिर उसके बाद का जो वीक है वह 3 या 4 बार, जैसे मैंने आपका इंडिकेट किया है। और उस पूरे में ये विभूति योग और अविकम्प योग, अविकम्प तरीके से, अप्रतिहत तरीके से, न हिलते हुए ये संकल्प पूरा हो, ये ईश्वर चरणी हमारी प्रार्थना और हमारा दृढ़ संकल्प। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।